सिलीगुड़ी के खालपाड़ा में दिवाली की रात एक बहुमंजिला आवास की छत पर आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार रविवार की रात करीब 11:30 बजे स्थानीय लोगों ने खालपाड़ा स्थित एक बहुमंजिला आवास की छत से धुआं निकलते देखा। इस बारे में तुरंत सिलीगुड़ी फायर स्टेशन को सूचित किया गया। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। गौरतलब है कि खालपाड़ा नया बाजार क्षेत्र शहरों के सबसे प्रसिद्ध व्यावसायिक स्थानों में से एक है। खालपाड़ा नया बाजार पूर्वोत्तर भारत का समूह व्यापारी केंद्र है। आग लगने की घटना के प्रकाश में आने के बाद आसपास के विभिन्न आवासों के लोगों को तत्काल बाहर निकाल दिया गया। इस बीच सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार समेत मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। मेयर गौतम देव ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। हम तो यहाँ पे सामने गार्ड ने मेरे को बताया आपकी छत के ऊपर आग लगी, मैं भाग के गया, फायर ब्रिगेड को बुला लिया। अच्छा, वो कोई रॉकेट गई होगी भीतर? बस वही है, रॉकेट गई होगी। वही यही हो सकता है कि आतिशबाजी से এই নিয়ে শহরে 3 নম্বর আগুন, হ্যাঁ এই নিয়ে শহরে 3 নম্বর আগুন দীপাবলির রাতে সেকুলার মার্কেটের পর এই করে বলা কিছু নেই। দুর্ভাগ্যজনক উৎসবের দিন দেখতে পাচ্ছি যে দমকল ফায়ার ব্রিগেড একটা অসাধারণ কাজ করছে, কিন্তু প্রচুর সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। একজন ফায়ার ব্রিগেড কর্মী অফিসার আহত হয়েছেন সেন্ট্রাল মার্কেটে। এখানটা এই দুটো আগুন কন্ট্রোলে আনার মধ্যেই এইখানে আগুন লাগার ঘটনা। এই ঘটনাগুলো আমরা মানুষের পাশে আছি, কালকে আবার আসবো, ওদের সাথে কথা বলবো। এখন মূল চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি আগুনটাকে নিয়ন্ত্রণে আনা। বাকি ব্যাপারগুলো নিয়ে পরে আমরা বিশ্লেষণ করব। সেটা কি আরো বিশেষ করে আরো এই যে দীপাবলির রাত যেখানে নানানভাবে বাজি পড়বে এটা বাজি ফানুস থেকে হয়তো হয়নি, এখনই আমি বিশেষ কিছু কথা বলতে চাই না। এখন আগুনটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা বিষয়, তারপর আমরা নিশ্চয়ই রিভিউ করব। আর মানুষের পাশে আছি, আর শিলিগুড়ি মানুষকে। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। सोमवार के दिन जामुड़िया थाना अंतर्गत नीखा स्टफ क्लब में कविता फाउंडेशन और श्रीपुर फाड़ी पुलिस के सहयोगिता से इलाके के छोटे छोटे बच्चों में ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस ड्राइंग प्रतियोगिता में तकरीबन 50 से ज़्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों में पर्यावरण को बचाने की प्रतिभा को निखारने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया कि किस तरह से दीपावली और त्योहारों में हम लोगों को दूषण फैलने वाले पटाखों को नहीं जलाना है। जमुड़िया सर्कल इंस्पेक्टर सुशांत चैटर्जी ने बताया, बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ড্রয়িং কম্পিটিশন তোমাদের নিয়ে যেটা তোমরা মাথায় রাখবে, আমরা যদি বাজি ফোটাই, যদি সূর্য বাজি যদি ফোটাই, স্মোক তো যেগুলো ধোঁয়া যেগুলো হয় সেগুলো ক্ষতিকর আছে। সেগুলোতে কী ক্ষতিকর আছে যে আমরা যখন পরিবেশটা পুরো বায়ুটা দূষণ হচ্ছে, আমরা সেই শ্বাস নেবো, আমাদের শ্বাসকষ্ট হতে পারে, যাদের শ্বাসের প্রবলেম আছে, হ্যাঁ, শ্বাস নিতে যাদের কষ্ট হয়, তো এইসব এই ধোঁয়ার জন্য শ্বাসকষ্ট হতে পারে। এটা একটা পুরো আমাদের এই পরিবেশটা পুরো একদম দূষিত হচ্ছে। এটা একটা কারণ। এছাড়া আমরা যদি শব্দবাজি ফাটাই, এটা সবথেকে যেটা বড় সমস্যা শব্দবাজিতে, ধরুন শব্দবাজিতে যদি আমাদের কোনো সমস্যা হয় তো আমরা মুখে বলি, কিন্তু ধরুন আমাদের বাড়িতে কোনো পেটস আছে, বিড়াল, কুকুর, হ্যাঁ, আমরা যেগুলো পালি, বা আমাদের গরু আছে, ছাগল আছে, এদের সবথেকে বড় সমস্যা হয়। তো এরা কিন্তু মুখে বলতে পারে না। তো এইসব জিনিসগুলোকে খেয়াল রাখবে। তোমরা বড় হবে, তোমরা নিজেদের বাড়িতে তোমাদের এইসব জিনিসগুলো থাকবে, কুকুরের ছানা থাকবে, বিড়ালের ছানা থাকবে, গরু ছাগল থাকবে, হাঁস মুরগি থাকবে। এই যে যারা কথা বলতে পারে না, এইসব জন্তুদের কিন্তু শব্দবাজিতে কিন্তু ভীষণ প্রবলেম হয়, অনেক সমস্যা হয়। তারা কিন্তু মুখে কিন্তু কথা বলতে পারে না। তো তাদের কথা ভেবে আমরা নিজেদের কথা ভেবে আমরা এইসব জিনিসগুলোকে থেকে বিরত থাকবো, যাতে এগুলো বর্জন করা যায়। এবং শুধু নিজেরা নয়, আমাদের পুরো ফ্যামিলিকে আমরা এগুলোকে সচেতন করবো, যাতে ফ্যামিলির মধ্যে কেউ যেন এগুলো না করে, এবং আশেপাশে বন্ধু বান্ধব যাদেরকে আমরা বলতে পারি, তাদেরকে আমরা এগুলোকে নিয়ে সচেতনতা বার্তা দেবো, যাতে এইসব জিনিস করলে এই ক্ষতি হতে পারে, এই হতে পারে। তাহলে কি হবে, আমরা যদি একে একে অল্প অল্প করে স্টেপ নিই, একটা দিন আসবে যে এই জিনিসটা একদম নির্মূল হয়ে যাবে। কালী পুজোর সময় সারা রাত, কিন্তু আজকের ডেটে অনেকটা কমেছে। আমি গতকাল দোকানে তো খোলামেলা বিক্রি হতো, সেই বিক্রিটা বন্ধ। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है मां भोजनालय।
अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। अंडाल थाना क्षेत्र की बनवाहल फाड़ी में काली पूजा के शुभ अवसर पर लगभग 3000 लोगों में खिचड़ी प्रसाद का आयोजन किया गया। इस दौरान बनवाहल फाड़ी के IC देवदास सुपाकर, छोरा ग्राम पंचायत के प्रधान रामचरित्र पासवान, किशोर चक्रवर्ती, संदीप सरकार, संपत बाबू, अली बाबू उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान किशोर चक्रवर्ती ने PVTV के माध्यम से ये बातें कहीं। अंडाल थाना अंतर्गत बनवाल फाड़ीते काली पूजा कालके হয়েছে। সর্বজন মঙ্গলের জন্য এই এলাকার সবাই যেন সুস্থ থাকে, সুখে থাকে, শান্তিতে থাকে এবং সেই উপলক্ষে আমাদের বড় IC দেবদাস সুপাকর মায়ের সহযোগিতা এবং সবারই সহযোগিতায় এলাকাবাসীবৃন্দ আজকে 3 থেকে 4000 লোকের খিচুড়ি ভোগ এবং খাওয়ানো হয়। প্রতি বছরই হয় এবং এই বছর এরকম হচ্ছে। আপনার 4000 লোক খায়। আপনার পরিচয়? আমার এই পাশেই বাড়ি, সোলা গ্রামে, কিশোর চক্রবর্তী নাম। वहीं दीपावली और काली पूजा के अवसर पर बनवाहल फाड़ी की ओर से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी गई। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। ऑफर ऑफर ऑफर! बहुला बाजार अंजलि हीरो शोरूम। यहाँ हीरो कंपनी के सभी तरह की बाइक मिलता है। इसके अलावा दीपावली के विशेष छूट दिया जा रहा है। मोटरसाइकिल बुकिंग करने पर एक आकर्षणीय उपहार भी दिया जा रहा है। साथ ही जिनका बैंक खाता या चेकबुक की सुविधा नहीं है, उनके लिए आसान उपाय है, हाथों से ही किस्ती जमा कर सकता है। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और लुत्फ का लाभ उठाइए। सिलीगुड़ी शहर को डेंगू मुक्त बनाने के लिए एक बड़ी विचार विमर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में डिप्टी मेयर, सभी मेयर परिषद सदस्य, बोरो चेयरमैन सदस्य, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सिलीगुड़ी जिला अस्पताल के अधीक्षक, आयुक्त और सचिव, सिलीगुड़ी नगर निगम और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि हाल ही सिलीगुड़ी डेंगू से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, इसलिए नगर निगम किसी प्रकार का खतरा नहीं मोल लेना चाहता। কোমরবিডিটি ছিল 3টে, সেই কোমরবিডিটি নিয়ে ছেলেটি ফাইনালি হ্যামারেজে মারা গেছে। আমরা আমাদের যে নজরদারি, সার্ভে, জনসচেতনতা আর আরেকটা কথা, প্রেস মিডিয়া বন্ধুদের মাধ্যমে আমরা মানুষকে জানাতে চাই, কারো কোনো জ্বর হলে তারা যে কোনো ডাক্তারের পরামর্শ নিন। ট্রিটমেন্ট বাড়িতে বসেও হতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া এবং ডাক্তাররা যদি মনে করেন যে এর ক্লিনিক্যালি ব্লাড টেস্ট, ম্যাকালাইজা, NS1 যা টেস্ট করার দরকার বা অন্যান্য কিছু টেস্ট, পরীক্ষা নিরীক্ষা, সেটা ডাক্তারবাবুরাই বেশ জাজ, তারাই বলবেন। কিন্তু জ্বর হলেই নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আমাদের সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, পলিক্লিনিক, মাতৃসদন, শিলিগুড়ি হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ বা পাড়া। শিলিগুড়িতে ডেঙ্গির পরিস্থিতি কেমন? এখন আমাদের ডেঙ্গির পরিস্থিতি গতবারের তুলনায়ও খুব ভালো, এবারও খুব ভালো আছে। এখনো পর্যন্ত নর্মাল সিচুয়েশন, কোথাও কোনো রকম প্রবলেম বেশি নেই, কিন্তু টুকটাক কিছু একটু মানে স্পোরাডিক কেস বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে। আবার বাইরের থেকেও কিছু কেস আসছে, এখানে সেগুলো হচ্ছে, আইডেন্টিফাই হচ্ছে। পুজোর সময় অনেক লোক এসেছিল, তারাও আইডেন্টিফাই হচ্ছে, এইটুকুই। পাহাড়ের অবস্থা? পাহাড়ে এখন আমাদের ঠিক আছে, পাহাড়ে কোনো কিছু নেই, কিন্তু কিছু তো আসবেই। আচ্ছা, ফিগারটাই তো বললেন না স্যার। ফিগারটা বলে দাও। বলেন না স্যার, একটু বলেন, ভালো করে বলেন স্যার। গতবার ছিল জানুয়ারি থেকে 400 কত না
2797 2022 যেটা 2022 रोशनी का त्योहार दीपावली पूरे देश के साथ साथ रानीगंज में भी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर यहाँ रानीगंज के विभिन्न इलाकों में बेहतरीन सजावट देखी गई। रोशनी से पूरा शहर जगमगा उठा था। निजी संस्थाओं के दफ्तरों को दुल्हन की तरह सजाया भी गया था। गली मोहल्ले में भी लोगों ने घरों में दिए, मोमबत्ती तथा लड़ियों से अपने घरों को सुसज्जित किया था। दीपावली के पावन अवसर पर मां लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। लोगों ने अपने घरों तथा विभिन्न दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों में लक्ष्मी पूजन भी किया। लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी किया। इस मौके पर विभिन्न दुकानों खासकर गहनों की दुकानों में लोगों की भीड़ देखी गई। माना जाता है कि धनतेरस को लेकर दीपावली तक गहनों की खरीदारी करना शुभ होता है। इस प्रथा को आगे बढ़ाते हुए रानीगंज के लोग विभिन्न आभूषणों की दुकानों में पहुंचे। इस बार दीपावली के साथ साथ काली पूजा भी थी। रानीगंज के शमशान में शमशान काली की पूजा की गई। यहाँ पारंपरिक रूप से मां काली की पूजा की गई। बड़ी संख्या में भव्य यहाँ पूजा सम्मिलित होने पहुंचे। इस मौके पर रानीगंज शमशान घाट मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया था और एक अलौकिक माहौल का निर्माण हुआ। वही पूजा के पश्चात खिचड़ी भोग भक्तों ने ग्रहण किया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटी। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। आज के समय में विलुप्त होते जा रहे कठपुतले एवं मिट्टी के बर्तन थीम पर बनाए गए जामुड़िया में एक काली पूजा के उपलक्ष्य में बने पंडाल को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के जामुड़िया से हरिपुर जाने वाले मुख्य सड़क वार्ड संख्या 7 स्थित दामोदरपुर के कटल तला में अग्रिम संघ क्लब की ओर से 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अग्रणी माटीर मां थीम पर आधारित एक भव्य पंडाल का निर्माण किया गया, जिसमें आज के समय में काठ से बनाए गए कठपुतले एवं मिट्टी के बने सैकड़ों बर्तन को इस पंडाल से सजाया गया है। इन्हें देखने के लिए लोगों का आकर्षण केंद्र बना हो। जब इसके बारे में पूछे जाने पर इस कमेटी के सदस्य तापस कर्मकार ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। জানতে চান মানে বলছি এই থিমটা আমাদের মানে কালী পূজা প্রায় মোটামুটি 60-65 প্রায় উঠতে হয়ে গেছে। আর এই বছর আমাদের থিম আছে মানে শিল্পী রাঙিনায় মাটির মা, যে থিমটা তুলে ধরা হয়েছে মানে আগেকার দিনে যে মানুষ কাঠের পুতুল, মাটির পুতুল ভুলে গেছে সেই সব জিনিসকে তুলে ধরা হয়েছে, মাটির জিনিস। আর যত আপনি এই চিত্র দেখছেন সব চিত্র, এইসব চিত্র সব কাঠের মানে কাঠের পুতুলের চিত্র আছে। এইসব জিনিসকে তুলে ধরা হয়েছে, আগেকার দিনে মানুষ যে ভুলে গেছে ওই সব জিনিসকে তুলে ধরা হয়েছে। এটা আমাদের মোটামুটি ওই পূজার দিন ভাইফোঁটা মানে ভাইফোঁটা পরের দিনেই 4 দিন থাকে, আমাদের মিনিমাম 4 দিন থাকে। এখানে বাচ্চাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, মানে আমাদের কোনো বাইরের কোনো আমরা আর্টিস্ট নিয়ে আসি না, মানে লোকালি যারা বাচ্চারা আনন্দ উৎসব করে তাদের নিজেরাই সব বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান করে নিজেরাই। এটা আমাদের পুরো মানে দামোদরপুর কাঁঠালতলার পুজো, গ্রামের 16 আনার পুজো। আপনার নাম? আমার নাম তাপস কর্মকার। वहीं इसके अलावा यहाँ पर 4 दिनों तक स्थानीय बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। इस मौके पर इस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष बावरी, सचिव सुमित बावरी, कोषाध्यक्ष राज्य वादेकर उपस्थित थे। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
ऑफर 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 बहुला बाजार अंजलि हीरो शोरूम। यहाँ हीरो कंपनी के सभी तरह की बाइक मिलता है। इसके अलावा दीपावली के विशेष छूट दिया जा रहा है। मोटरसाइकिल बुकिंग करने पर एक आकर्षणीय उपहार भी दिया जा रहा है। साथ ही जिनका बैंक खाता या चेकबुक की सुविधा नहीं है उनके लिए आसान उपाय है, हाथों से ही किस्तें जमा कर सकता है। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और लुत्फ का लाभ उठाइए। दिवाली के मौके पर बीएसएफ और टाकी म्युनिसिपल के वाइस चेयरमैन ब्लीचिंग और कूड़ेदान के साथ शहर की सफाई में निकल पड़े। 85 बाल्डियन महिला सीमा रक्षक और बल टाकी नगर पालिका भारत और बांग्लादेश की सीमा पर उत्तर 24 परगना की बसीरहाट में टाकी नगर पालिका के राजबाड़ी घाट, घोषबाड़ी घाट, कई घाटों की सफाई के लिए उतरी। दिवाली की रोशनी में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर टाकी के ईचामती नदी घाट सहित कई स्थानों पर नगर पालिका और सीमा रक्षक बल के जवान सुरक्षा के लिए उतरे। उपाध्यक्ष फारूक गाजी ने कहा, एक तरफ प्रदूषण और दूसरी तरफ घाटों की साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए हम बीएसएफ और नगर पालिका के पहल से दिवाली के मौके पर सुबह से ही सफाई पर उतर आए हैं। क्योंकि पर्यटकों का आना शुरू हो गया है, इसलिए हम अपने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए इस कार्यक्रम को चरण दर चरण जारी रखेंगे। दिवाली সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন। মা কালীর কাছে সবার মঙ্গল কামনা করি। আমার টাকি পৌরসভা থেকে সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এখানে হয়। এছাড়াও দীপাবলির উপলক্ষে আমাদের সোদপুর বিএসএফ ক্যাম্পার কোম্পানি কমান্ডার সাহেব আছেন, ওনাদের সাথে আমরা একসাথে পুরো এরিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছি। আমি আগামী দিনও চাইবো আমাদের সাহেবরা যেন আমাদের পাশে এভাবেই থাকে, আমাদের এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এইভাবেই সহযোগিতা করে। সবাইকে ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती को एक बार फिर से पश्चिम वर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। इसे लेकर आज आसनसोल के टीएमसी नेता शाहिद परवेज ने अपने समर्थकों के साथ जश्न मनाया, एक दूसरे को हरे रंग से रंग दिया। और इस बारे में शाहिद परवेज ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। आज हम लोग खुशी मना रहे हैं कि हमारे पश्चिम वर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस का सभापति नरेंद्र चक्रवर्ती को दोबारा बनाया गया। इसके लिए हम लोग जश्न मना रहे हैं और जश्न मनाना भी मेरा लाजिम है कि बहुत दिनों के बाद पश्चिम बर्धमान के अंदर में एक ऐसा डायनामिक लीडर जिसे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दिया गया, इससे हमारे तमाम कार्यकर्ता में जो जोश है, और ये जोश होना भी जरूरी है कि 2024 का जो इलेक्शन है ये जोश नहीं बल्कि होश से जीता जाएगा। और हमें एक ऐसा डायनामिक लीडर मिला है जिस पर धीरे धीरे विश्वास करके आज जो नई कमेटी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो घोषणा किया गया, जिनमें इनका नाम देखकर हम लोग बहुत उत्साही हो गए और उत्साही होना भी हमारा लाजिम है। एक तो काली पूजा का समय, उसके बाद दोबारा प्रेसिडेंट हुए, क्या बोलेगा? और ये दिवाली बम्पर दिए दीदी हम लोगों के लिए, पॉलिटिकल दिवाली बम्पर है। क्योंकि अगर ऐसे मौके में दीदी जहाँ पर एक तरफ जश्न दिवाली का मनाया जा रहा है, वहाँ पर एक कमेटी का डिक्लेयर किया, ये दीदी हम लोगों के लिए दोबारा दिवाली मनाने का मौका दिया गया। और ये हमारे लिए बहुत फख्र के साथ कहना पड़ता है कि हमने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत नेता को देखा, जिसमें एक नेता था जिसका नाम है मोड़ाई घटक, जिसने बहुत सेक्रीफाइस करते करते आज इस मुकाम पर आया। उनका मुकाबला शायद दूसरा कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर उनके बाद कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई दूसरा नेता अगर है तो उसका नाम है नरेंद्र चक्रवर्ती है। ये मैं अपना आइडियोलॉजी के हिसाब से बात करो, मेरा मन की बात करता हूँ, इसलिए नरेंद्र चक्रवर्ती है मोड़ाई का बगल में खड़ा होने का ताकत रखता है। दूसरी बार प्रेसिडेंट हुए जी, पहले बार उनके काम हुआ और कितना काम होगा? काम हुआ है, बहुत सारा काम तरक्की पर देख रहे हैं। आज तक पॉलिटिकल में बहुत सारे जो आपस में मतभेद पर तमाम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता, जो तमाम लीडरान जो पहले कहीं ना कहीं किसी दुख मुसीबत की वजह से दूर हटे हुए थे, जिसको बहुत हद तक कोशिश किया गया उनको करीब लाने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि मोड़ाई घटक के नेतृत्व में जो नरेंद्र चक्रवर्ती जो यहाँ जिला के अंदर में जो जिम्मेदारी संभाला है, हमें यकीन है कि मोड़ाई घटक के निर्देश में नरेंद्र चक्रवर्ती सिर्फ वही काम करेगा जिससे पार्टी की मजबूती है, जो पिछले काफ़ी दिनों से मुलायदा करते हुए आ रहे हैं। मेरा नाम शाहिद परवेज है, मैं जिला तृणमूल कांग्रेस का सेक्रेटरी हूँ। आसनसोल से बीजू मंडल के रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। আপনি কি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নতুন ব্যবসা বা বাসস্থানের জন্য জায়গা খুঁজছেন? এমন জায়গা চাইছে যা ব্যবসার একেবারে অনুকূল, নাকি বাসস্থানের বাস চৌকির জন্য স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল চাইছেন হাতের নাগালে? তাহলে আর চিন্তা না করে আজই যোগাযোগ করুন রিয়েল এস্টেট গ্রিন ভিলেজের সাথে। গ্রিন ভিলেজ আপনাকে দেবে মেজিয়ার তারাপুরে জাতীয় সড়কের ধারে আপনার পছন্দের সেরা জায়গা, তা ব্যবসার যোগ্য হোক বা বাসস্থানের। নিশ্চিন্তে জমি কিনে পূরণ করুন আপনার স্বপ্ন।
আপনার স্বপ্ন পূরণে আমরা দেব আপনার পছন্দের সেরা প্লট। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন গ্রিন ভিলেজের অফিসে অথবা সরাসরি ফোন করতে পারেন 9333123266 এই নম্বরে। रात करीब 12:30 बजे आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 102 स्थित राधानगर रोड पर 54 वर्षीय अभिजीत चक्रवर्ती और उनकी पत्नी पूजा कर लौट रहे थे। तभी नियामतपुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वो दूर जाकर गिरे। अभिजीत चक्रवर्ती की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने मुआवजा और सड़क पर बैरिकेडिंग की मांग को लेकर रात और दिन में सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंची नियामतपुर चौकी की पुलिस के आश्वासन के बाद पथ अवरोध हटा लिया गया। कार को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। এত হাই স্পিডে আসে এখান থেকে কাউন্সিলরের গাড়ির সঙ্গে টক্কর মারছিল। এখান থেকে মেরে ওখানে একটা ওই বিধানচন্দ্র কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট ওখানে পরে ধাক্কা মারে, ইলেকট্রিক পোলে মারার পরে ওকে একদম ছিটকে মারে, ওখানে মাথার গেলু উড়ে যায় এবং ওইখানেই স্পট হয়ে যায়। এটা কটা নাগাদ ঘটেছে? মোটামুটি 11:30-12টার মধ্যে মোটামুটি। উনি কি রাস্তা পারাপার হচ্ছিলেন? ও বাঁ সাইড দিয়ে যাচ্ছিল, গাড়িটা হাই স্পিডে, মানে এত স্পিড, মানে গাড়িতে স্পিড কাটা বলে। তাহলে মন্দিরের পাশ থেকে যাচ্ছিল? এই দিক দিয়ে যাচ্ছিল, মানে চিনাকুড়ি, নিয়ামতপুর টু চিনাকুড়ি যাচ্ছিল। চিনাকুড়ি যাবার রাস্তাতে ওখানে চা দোকানের সামনে ওকে মারে এবং সেখানেই স্পট হয়ে যায়। আপনাদের রাস্তা অবরোধ করেছেন, কি দাবি আপনাদের? রাস্তা অবরোধ, আমাদের এই রাস্তা মানে ব্যারিকেড করতে হবে এবং বাম্পার করতে হবে এবং হেভি ভেহিকলস এখানে আমরা কোনোভাবেই চলতে দেবো এবং গাড়ির স্পিড কন্ট্রোল করার জন্য ড্রাইভার পুলিশ ব্যবস্থা করবে। ক্ষতিপূরণের দাবি চাইছেন? ক্ষতিপূরণ তো চাই, তার ফ্যামিলি কীভাবে মেনটেন হবে? আমরা চাই তার ফ্যামিলিটা যেমন মেনে, তার ছেলে পড়াশোনা করছে, তার কি ব্যবস্থা হবে? ওর বাবাকে ডাকারও হয়েছে, ফাঁড়িতে ডাকুক, আমরা নেগোসিয়েশন করব, কিন্তু তার নামে প্রথমে কেস হবে ওর নামে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। ऑफर ऑफर ऑफर! बहुला बाजार अंजलि हीरो शोरूम। यहाँ हीरो कंपनी के सभी तरह की बाइक मिलता है। इसके अलावा दीपावली के विशेष छूट दिया जा रहा है। मोटरसाइकिल बुकिंग करने पर एक आकर्षणीय उपहार भी दिया जा रहा है। साथ ही जिनका बैंक खाता या चेकबुक की सुविधा नहीं है, उनके लिए आसान उपाय है, हाथों से ही किस्ती जमा कर सकता है। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और लुत्फ का लाभ उठाइए।